Okay, let's start exercise number 22. The passengers were happy. Dash the friendly and warm treatment given to them. Were happy. Dash. From तो होता है के लिए. By. Were happy. By or with. First answer should have been with. Is it clear? Clear or not? Because we are adding two sentences. The passenger were very happy. Next sentence is altogether different. किसके साथ? The friendly and warm treatment. With the friendly and warm. अगर with नहीं है तो क्या होएगा जल्दी से? What is the answer? By. From तो किसी के लिए होता है. Next. The treatment given by him dash his subordinates was mean. The treatment given by him dash his subordinates. Towards होता है की तरफ. To होता है के लिए. So to is the answer. Clear or not? The treatment given by to his subordinates को दिया. Is it clear? जहां पे towards लगता है वहां पे क्या आंसर आएगा? To. याद रखना. Simple. Next. He has developed. Prejudice का मतलब क्या होता है? What does prejudice mean, anyone? Prejudice क्या होता है? साथ के साथ मार्क करो जो वर्ड नहीं आता. Prejudice is उसने पहले से विचारधारा बना ली. He has developed an partisan attitude. क्या एटीट्यूड बना लिया है? पार्टिसियन. पार्शियल है वो किसी की तरफ. अगर मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ेगा तो मैंने पहले से बना लिया है. प्रेजुडिस बना लिया. Clear or not? So what is the word? Partial. He has developed prejudice के लिए. What is the answer? Against is always negative बच्चे. He has developed prejudice against English. Is it clear or not? Against would always used in a negative way. बिकॉज हमने कुछ नेगेटिव किया है, प्रेजुडिस बना लिया है, तो हमेशा अगेंस्ट क्या होएगा? नेगेटिव वे में. याद रह जाएगा. प्रेपोजिशंस बहुत गलत होएंगे. कल वील स्टार्ट विद स्पॉटिंग एरर्स स्टेप बाय स्टेप. ठीक है. नेक्स्ट. द हायर यू गो द मोर डिफिकल्ट इट विल बिकम. इट बिकम्स टू ब्रीथ और इट बिकेम टू ब्रीथ. बिकेम पास्ट में होता है. इट बिकम्स टू ब्रीथ. क्लियर हो ना? ही वाज स्वर्न डैश. सिंपल है. चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की क्या होती है? स्वेरिंग डैश सेरेमनी. स्वेरिंग इन. स्वेरिंग आउट कोई नहीं होता. स्वेरिंग आउट तो गाली निकालना होता है. ही वाज स्वेरिंग आउट एट हिम. बेचारे को गाली थोड़ी देनी है. स्वेरिंग इन सेरेमनी. स्वेरिंग इन का मतलब क्या होता है? आप किसी को पोस्ट पे लेके आ रहे हो. क्लियर है कि नहीं? स्वेरिंग आउट तो किसी को गाली निकालना होता है. क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट. सो व्हाट इज द आंसर? स्वेरिंग. She yelled dash him and he hastily retreated. She yelled on him or at him? She yelled at him. के ऊपर चिल्लाई. The children were disappointed because they had hoped dash with us. To go. To have gone past में होता. They would have hoped to have gone. Is it clear? You must adapt yourself. किसके साथ? You must adapt to the environment or with the environment. एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ. You must adapt to the environment or with the environment. You must adapt to your surroundings or with your surroundings. To. You adapt to your friends, not with your friends. So what is the answer? To. Because ये your new surroundings आगे इस करके लग रहा है. Adapt yourself to. He adapted to the new condition or with the new condition. Simple sentence पूछता हूँ. To the new conditions. Is it clear? तो ये गलती हो जाती है. क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट वन. The city was plunged dash darkness due to sudden power failure. The city was plunged into darkness. Is it clear? She stood dash Amit but could not utter a single. ये गलत होएगा. Plunged का मतलब होता है कि पूरी की पूरी सिटी गिर गई अंधेरे में. Plunged into darkness होता है. She stood dash. सामने खड़ी हुई. अगेंस्ट नहीं हो सकता. टूवर्ड्स नहीं हो सकता है ना. वो सामने खड़ी हुई बट वो कुछ नहीं बोल सकी. तो आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर. क्लियर है कि नहीं? द राजपूत ऑलवेज फॉट. टिल वर्सेस अनटिल कैसे होता है? टिल इज अगेन इनफॉर्मल वे. ये फॉर्मल वे में यूज करते हैं अनटिल. जैसे कि ऑन वर्सेस अपॉन. He has taken on this responsibility. I have taken upon. जब अपने लिए यूज होता है तो क्या यूज करते हैं? Upon.
ऑन किसके लिए होता है, किसी और के लिए। क्लियर है कि नहीं? टिल अनटिल वैसी होता है, देयर इज नो डिफरेंस टू इट। हाँ, व्हाट शुड बी द आंसर? जब तक हिंदी में डायलॉग नहीं होता, जब तक आखिरी आदमी खड़ा रहेगा तब तक मैं टिल। इज इट क्लियर और नॉट? उसका डायलॉग गब्बर सिंह का क्या था? जब तक बसंती तू नाचेगी तब तक इसकी सांसें चलेगी। सो व्हाट इज दैट वर्ड? टिल। क्लियर है कि नहीं? एनी पॉइंट ऑफ टाइम कहीं प्रॉब्लम हो, स्पीक इन हिंदी। क्लियर? अनटिल किसके लिए होता है? खुद के लिए। थोड़ा सा मोर एक्टिव, गिव मी आंसर। ही इज द फ्रेंड। अच्छा, हु वर्सेस हुम कैसे होता है? अगर ही और शी आएगा ऑप्शन के अंदर बेटर, तो हम यूज करेंगे हु। अगर हिम और हर बेटर आता है फिल इन द ब्लैंक में, तो यूज करते हैं हुम। समझ आ गया? क्लियर है कि नहीं? अब देखो, ही इज द फ्रेंड, ही आई ट्रस्ट द मोस्ट आना चाहिए, हिम आई ट्रस्ट द मोस्ट। बताओ रिजुल, ही इज अ फ्रेंड, ही आई ट्रस्ट द मोस्ट और हिम आई ट्रस्ट द मोस्ट। हिम आएगा तो क्या आएगा? हुम। समझ आ गया? यस और नो? तो हु वर्सेस हुम कैसे यूज होता है लिख लो। फिल इन द ब्लैंक में इसमें आपने पाके देखना है, या तो ही या हिम या शी या हर। इज इट क्लियर और नॉट? जो बेटर सूटेड आएगा वो आएगा। क्लियर है अर्पित? चो क्या? जहां पे आपका बेटर आएगा, he is somebody who I trust, he is somebody him I trust the most or who I trust the most? He I trust the most। ही जो भी फिल इन द ब्लैंक है उसमें ही आएगा तो हु आएगा, अगर हिम आएगा तो हुम आएगा। इज इट क्लियर? वी शुड अबाइड डैश द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। किसके रूल्स हैं? इंस्टीट्यूशन के। सो बाय द रूल्स। इज इट क्लियर? सो वी यूज बाय। एक्शन है इसमें। यू मस्ट डिस्पेंस डैश सर्विस। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है बच्चे? टू रिलीव, टू फिनिश ऑफ। यू मस्ट डिस्पेंस। आंसर? हाँ रिजुल आंसर एक एक करके बताओ, गलती होएगा इट्स ओके। यू मस्ट डिस्पेंस ऑफ। ओ डबल एफ और ओ एफ में क्या होता है? ओ डबल एफ तो सेपरेशन होता है, ये ओ डबल एफ नहीं। यू मस्ट डिस्पेंस ऑफ द बॉडी इज करेक्ट। किसके साथ? उसकी सर्विसेज के साथ खत्म करना है, तो आंसर इज विद। ओ डबल एफ तो तब होता है तब करेक्ट था। क्लियर? डिस्पोज ऑफ द बॉडी, जैसे हमने बोल दिया he was asked to dispose of the separation करना। नेक्स्ट विद्या, we waited at the bus stop dash the bus came। मैंने क्या बताया था? टिल और अनटिल में फर्क क्या होगा? मोर फॉर्मल। हमारी बात होगी तो क्या आ जाएगा? अनटिल। किसी और की बात कर रहे हैं तो टिल। इज इट क्लियर और नॉट? गुड। नेक्स्ट वन। यस अमन, the telephone dash several times before I answered it। would ring is in the past, has rung या had rung or was the telephone, sorry, in the present, in the future the telephone would ring so many times, that would be there। had rung, has rung और was ringing। was ringing किस में आएगा? the telephone was ringing past में हो गया। past ये हो गया हमारा future। the phone had rung many times or phone has rung many? What is the answer for it? The phone had rung many times or the phone has rung many times? The phone had already rung many times before I answered। Next, I shall not desert। desert के दो मीनिंग्स होते हैं। कौन से दो मीनिंग्स है? तीन है एक्चुअल में तो। बताओ। एक ये वाला डिजर्ट नहीं, वो DESSERT होता है। ये डिजर्ट क्या होता है? स्वीडिश। आई शैल नॉट डिजर्ट है। अब इसके दो मीनिंग्स है डिजर्ट। एक तो है अबैंडन, दूसरा क्या है? रेगिस्तान। इज इट क्लियर? हाँ। ओके, द टेलीफोन हैड रंग सेवरल टाइम्स, ऑलरेडी बज चुका था। द टेलीफोन हैड, हैज वाज नहीं, वाज रिंगिंग है ना, वाज रिंगिंग व्हेन आई पिक्ड अप द फोन। ओके, द टेलीफोन हैड रंग, बज चुका था, उसके बाद मैंने आंसर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, आई शैल नॉट डिजर्ट अबैंडन हिम डैश के लिए। किस चीज के लिए नहीं करूंगा मैं? फॉर। हिंदी में आ जाते हैं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं किसी के लिए। जैसे अक्षांश ने बोला, मैं उसको किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। किसको? पढ़ाई को। ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल है कि नहीं? द डैश
अच्छा, अब मैंने बताया था लेन कब होता है, आई जस्ट लेन डाउन, साथ के साथ कुछ हो जाए। नाउ व्हाट वुड बी लाई इज झूठ, lied is in the past, laid. There, dash, both challenge and secret of success. Yes, Miss Negi. What is the answer? Lied. वो गलत बोल रहा है. There, lay, रहता है. Laid, lied is झूठ. ये दोनों ही valid हैं. Lay या laid होता. ये तो झूठ है. Is it clear? Laid past में आता है. Lay is in the present. So हमारा क्या यूज होएगा? Present form. There lies. Yes, that can be done. That can be done. Lies can be done. There lays. Generally, there lies a challenge for him. There lays a challenge. Is it clear? There lay both a challenge and that. That will be clear. We shall finish the work before he. जब उसके आने से पहले खत्म कर देंगे ही. I bought a new car last year, but I dashed my old car yet. So at present I have two cars. अभी तक मैंने बेची नहीं है. I have not. Is it clear? Next, please. Yes, Mr. Negi, speak up. Mrs. का बोल दियो उसे. मिस नेगी का बोला. ये वाला कौन? हाँ बोला मिस नेगी. I think so. That's what you see him as, Miss Negi. That's why you're saying it. Yes. He insists. किस चीज पे? On. तूने at बोला था. तूने इस चीज पे insist किया. He insisted on partying till late night, not at. I insist on doing this thing. Is it clear? I insist on doing this thing. He insisted for किस चीज के लिए? He insisted for getting something. वो for getting होता है. He insisted on उस चीज पे उसने बात किया. Is it clear? Next. Insist का मतलब क्या होता है? बार बार अपील करना. Yes, Aman. No sooner did he go in dash he came out. THAN आएगा. No sooner के साथ क्या आता है? Than. नो सूनर, ये याद रखो. नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा? दैन. ये रूल है, मार्क कर लो. नो सूनर के साथ हमेशा क्या आएगा? दैन. ये हमारा उसमें यूज होएगा स्पोर्टिंग एरियस में. नो सूनर दैन. नेक्स्ट प्लीज. ड्यू टू इमरजेंसी कंडीशंस द आर्मी वाज आस्क्ड टू स्टैंड बाय. कि आप वेटिंग पे रहे. स्टैंड बाय का मतलब है वेटिंग. He has a lot many standby girlfriends. Is it clear? Stand in क्या होता है? किसी के लिए खड़ना. He is in the like in the sense हम बोलते हैं he is the stand in keeper. उसकी पोजीशन में आया और he is the stand in किसी और की जगह पे. In place of someone. Stand up का मतलब क्या होता है? एक तो वो होता है stand up to the occasion. Rise up. Is it clear? Stand out क्या होता है? अलग दिखता है. He looks different, alienated. He stood out from the crowd. Next. ये भी फिर गलत होएगा. ये सही है क्वेश्चन में. फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या है बच्चे? फ्यू और अ फ्यू में डिफरेंस क्या होगा? हाँ. यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और फ्यू फ्रेंड्स. अगर मैं पूछूं यू हैव अ फ्यू फ्रेंड्स और अ फ्यू फ्रेंड्स, यू हैव फ्यू फ्रेंड्स और अ फ्यू. A few is not many. Sorry, few is not many. This is some. कुछ तो है. A few का मतलब है कि almost negligibly. Few का मतलब क्या है? Negligible. A few का मतलब क्या होता है? कुछ तो है. Is it clear or not? Few क्या होता है ही नहीं. Almost. A few का मतलब है कुछ तो है. He's so bad because आ गया so. तो क्या आएगा? Few. बैड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है? उसके अंदर गुस्सा है तो उसके दोस्त होंगे भी कि नहीं? नहीं होने के चांसेस ज्यादा है. तो आंसर क्या होएगा? फ्यू. सो क्या करता है? सो और टू में फर्क क्या था? इट्स सो हॉट. उसको बताता है कि हाँ हॉट ज्यादा है. टू का मतलब क्या होता है?
आज तो हीट ली नहीं जा रही। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सो एंड टू क्लियर? सो क्या होता है? इट्स सो हॉट कि है। टू हॉट का मतलब है हीट ही नहीं ली जाती। सिंस ही सो बैड टेम्पर्ड, तो आंसर क्या आएगा? फ्यू। ही शॉर्ट टेम्पर्ड सो ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, करेक्ट होता। सिंस हमने क्या ऐड कर दिया? तो क्लियर और नॉट? यस मिस्टर नेगी, अ फ्यू और फ्यू में डिफरेंस क्या है ही नहीं। ऑलमोस्ट अ फ्यू का मतलब है कुछ है। सो वर्सेस टू में फर्क क्या होता है? सो हॉट है, हॉट है। सो स्वीट का मतलब है मीठा है बहुत, थोड़ा सा ज्यादा मीठा है। टू स्वीट का मतलब है कि खाया ही नहीं जा सकता, इतना मीठा है। इज इट क्लियर? इट इज टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, बहुत ज्यादा ठंड है। कमल वॉक्स एज इफ। लेम का मतलब क्या है? लंगड़ा है। एज इफ ही वर, वॉज पास्ट में होता ना, वो तो ऐसे चलता है। एज इफ ही वर प्रेजेंट में। इज इट क्लियर? वो तो तूने वॉज लगाएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट में। हैड बीन इज अगेन इन द पास्ट। हैड बियर नहीं होगा, हैड बीन होगा। नेक्स्ट, इट डज नॉट रेस्ट डैश द कलेक्टर to order his release. Yes, what is the answer? It does not rest. क्या आएगा आंसर? कौन is used for formal? मेरे बारे में होता तो मैं लिखता। कलेक्टर है, तो इसमें क्या आएगा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर नहीं है? इट डज नॉट रेस्ट विद द कलेक्टर। ऑन नहीं है ना। सुनो, ऑन होता कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने बोला इट डज नॉट रेस्ट विद द कलेक्टर टू ऑर्डर रिलीज। कलेक्टर के पास इतनी पावर नहीं है कि उसका रिलीज ऑर्डर कर सके। ये जो पावर है डज नॉट रेस्ट विद द कलेक्टर। क्लियर है कि नहीं? ओके नेक्स्ट, रीनाज मैरिज डैश। बिटवीन क्यों नहीं हो सकता? दिस इज अ मैरिज, सॉरी, द टू पार्टीज। इज इट क्लियर? रीना इज मैरिड विद, मैरिज विद। अगर बिटवीन यूज करना तो मैं क्या करता? इस सेंटेंस को कैसे बना? रीनाज मैरिज विद, दो लोगों के साथ। रीनाज मैरिज विद आएगा। इसे क्लियर? बिटवीन होता तो क्या होता? The marriage between Reena and Rajesh has turned sour or has turned tumultuous. The marriage between. Is it clear? जब दो इधर है तो क्या आएगा? with. अगर हम आगे को लेके जाते हैं तो between पहले आएगा फिर बाद में दो नाम। Is it clear or not? लिख लो। The marriage between Reena and Rajesh has turned tumultuous. Tumultuous का मतलब क्या है? लाइफ में उनके उथल पुथल हो चुकी। If you live in a corrupt society, you cannot easily rise dash the prevailing corruption. Answer over. Okay, मैं एक करप्टेड सोसाइटी में रहता हूँ, इसका मतलब ये है, इस करके मैं करप्शन से ऊपर नहीं उठ सकता या फिर के ऊपर नहीं उठ सकता। करप्शन से ऊपर क्या हो जाएगा? अबव। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो हिंदी में कन्वर्ट कर दो सेंटेंस। इज इट क्लियर? बिकॉज क्या है, ऑलरेडी करप्ट सोसाइटी है, तो हम क्या, वी कैन नॉट राइज अबव करप्शन। हमें तो वो क्या बोलता है कि वी हैव टू बी लाइक इन द सोसाइटी इट इज एवरीबॉडी इज करप्ट, सो वी कैन नॉट राइज अबव करप्शन कोई भी काम कराने के लिए। आई एम ग्लैड टू हैव सीन, मैंने देख चुका ऑलरेडी। मैं खुश तभी होऊंगा अगर मैंने मूवी देख चुका होगा। तो क्या आएगा? आई एम ग्लैड टू हैव सीन। क्लियर और नॉट? अब मूवी बिना देखे तो खुश नहीं हो सकते, मूवी देखोगे तभी आप बोल सकते मैं खुश हूँ। तो व्हाट इज द आंसर? आई एम ग्लैड टू हैव सीन। The story developed किसके अंदर? The story developed into, is it clear? The story developed into a thrilling climax. Next one. The rule is applicable for होता है के लिए। ये रूल हर किसी को एप्लीकेबल है। The rule is applicable to everyone. This rule, अगर मैं बोलता this rule is applicable only for डिफेंस पर्सनल, सिर्फ उनके लिए। ये हर कोई आ गया तो इट इज एप्लीकेबल टू
एवरीवन, ये लिख लो ऐसे, तो आपको साथ के साथ एक पता लग जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है। इज इट क्लियर? फॉर होता है केस स्पेसिफिक के लिए, टू क्या है, हर किसी के लिए। एवरीबडी क्लियर विद दिस और नॉट? यस माय फ्रेंड, स्पीक नेक्स्ट। Every one of us will have to atone. Atone का मतलब क्या है? Pay for. Every one of us will have to atone for के लिए, for his mistakes. Everybody clear with this or not? Next, for specific. The everyone will have to atone for his mistake. हर एक आदमी को अपने गलत कामों के लिए, इज इट क्लियर? कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, सिंपल हिंदी में बोलते तो समझ आ जाता। क्लियर? नेवर बोस्ट, ये सिंपल है। ऑफ होता है योरसेल्फ, अबाउट होता है किसी और के बारे में, अदर्स। सो आंसर क्या आएगा? ऑफ। अपनी वेल्थ के बारे में बोस्टफुल ना हो, डू नॉट बोस्ट ऑफ योर वेल्थ। क्लियर है कि नहीं? डू यू थिंक यू डैश मी समवेयर बिफोर? हैव सीन, पहले देख चुके हो आप मुझे, यू हैव सीन। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वन। अब थोड़ा थोड़ा सा इट वुड स्टार्ट गेटिंग बेटर। प्रेपोजिशंस होने लगे बेटर कि नहीं हुए? कर करके ही होएगा, तभी मैंने बोला 6-7 एक्सरसाइज है, मास्टर हो जाओगे। The examinee could guess. The examinee could guess. Dash the answers correctly. Best होता, could guess all the answers हो सकता था, वो तो है नहीं। लिखते रहो। और इसमें क्या हो सकता है? all भी हो सकता था। At, about होता है concerning others, of होता है concerning yourself, वो दोनों तो आते ही थे, because ये आपसे तो concerned ही नहीं है। Is it clear? Guess at, तुक्का मारा। Could you guess at what price I brought this thing? Is it clear? Could you make a guess at? Okay, next one. We should try live dash the difficulties that we come across. हम live by या live through? हमें we should always live, try to live through जो difficulties हैं उसके through या by क्या होता है? के साथ। What is the answer for it? Through. Is it clear? जो बुरा टाइम है उसके थ्रू निकलना चाहिए। लिव बाय क्या होता है? के साथ। अब थ्रू होता है, जैसे कि ये बुरा टाइम के अंदर से मैं निकला हुआ हूं, तो वही बोलते हैं ना, बुरा टाइम के अंदर से निकलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ही लिव बाय में बताता हूँ कैसे होता है। लिव बाय सर्टेन रूल्स, ही लिव्स बाय सर्टेन रूल्स। कोई रूल्स जो आप फॉलो करते हो उसको फॉलो करते हो। इज इट क्लियर? लिव्स बाय, बहुत सिंपल है। ही वॉज रेयर्ड अप डैश द फुटहिल्स ऑफ मसूरी। वो रेयर्ड अप का मतलब है वो वहां पे ग्रो अप किया। ही वॉज रेयर्ड अप डैश द फुटहिल्स ऑफ मसूरी। I stay in Chandigarh at so and so. So what is the answer? सोचो, I stay in Chandigarh at so and so house number. आप अभी you are in Mohali at is, so in आएगा या at आएगा? In is non specific, at is specific. क्या आंसर? In मसूरी में उसने I stay in Chandigarh बोलता है या at Chandigarh? In Chandigarh at house number so and so. At is more specific. क्या? Foothills is not specific. Foothills तो बहुत बड़ा होता है एरिया। Chandigarh is nestled in the foothills of Shivaliks, not at the foothills of Shivalik. Is it clear or not? Chandigarh शहर बसा हुआ है किसमें? In the foothills of Shivalik, not at the foothills. Is it clear? Or the, I'll say, Punjab Secretariat is set up in the foothills of Shivalik at Sector 1. Yes or no? So समझ आ गया कि नहीं? What is the answer? In. Amidst क्या होता? जैसे हमने बोला amidst, जो वो था रुडयार्ड किपलिंग के कैरेक्टर बताओ एक, रुडयार्ड किपलिंग वाला कैरेक्टर, मोगली। द मोगली was reared at amidst a pack of wolves, के बीच। amidst क्या होता है? के बीच, जैसे हमने बोल दिया मोगली। the
They stole away even though the guard was on constant lookout. वो देखता था. Is it clear? आप हमेशा जब किसी चीज के देखते रहते हो तो उसके क्या हो जाता है? He was on the lookout. Clear or not? Look after किसी की देख रेख करना. Look after. He is looking after his father. Is it clear? Look out is किसी के लिए. My uncle decided to take Dash and my sister to the market. Me and my sister. Me and के साथ क्या आता है? My. A private secretary cannot have authority on his boss or over his boss. Over. Over और on में फर्क क्या होता है? जल्दी से. Yes, हिमांशु. Over और on में फर्क क्या है? Yes, my friend. हाँ बता जल्दी से. जब हम बोलते हैं कोई चीज है, the book is lying on the table. Contacting. He's sitting on the chair. जब किसी चीज के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो हम ऑन लगाते हैं. अथॉरिटी में क्या होगा? ओवर. समझ आ गया? ऑन क्या होता है? जब भी कॉन्टैक्ट हो. समझ आ गया? ऑन टॉप ऑफ के ऊपर. ऑन इज व्हेन दे आर ऑन भी उसका मतलब यही होता है. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल पर कॉन्टैक्ट है. इज इट क्लियर? ही सिटिंग ऑन द चेयर. बैठा हुआ है. कॉन्टैक्ट है चीज. ओवर भी टॉप दोनों का मतलब ऊपर होता है. पर कब होता है? जब कॉन्टैक्ट होता है तो क्या होता है? ऑन. सिंपल रह जाएगा. बेस्ट एग्जांपल लिख लो. द बुक इज ऑन द टेबल. द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल. क्लियर? A private secretary cannot have authority over his boss. Jan plays football as if and ना as if नहीं as. वो फुटबॉल ऐसे खेलता है जैसे कि वो एक एक्सपीरियंस. as if he were आता. as if के साथ क्या आता है? और as if she were. क्लियर? जैसे हमने पहले किया था as if he were named. क्लियर? as if क्या हो गया? कंडीशन. The rainy seasons has set. सेट ऑफ का मतलब होता है खत्म. जब शुरू होती है बारिश उसको बोलते हैं द रेनी सीजन हैज सेट. द मॉनसून्स हैव सेट इन. इज इट क्लियर? ऑफ इज सेपरेशन. सेपरेशन तो यहाँ पे नहीं लगेगा. नेक्स्ट वन. ही इज बीन अक्यूज्ड. किस चीज का एक्यूजेशन है? ऑफ थेफ्ट. ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट. इज इट क्या? ही इज बीन अक्यूज्ड ऑफ फॉर थेफ्ट ऑफ थेफ्ट. It's concerning him. He is accused for, he is in trial for this purpose. Trial होता तो for होता. Accused of किस चीज के पीछे accusation है? Is it clear or not? Accuse किसी को हमने accuse क्या होता है? मैंने इसको accuse किया कि नहीं गुनाहगार नहीं. मैंने accuse किया कि ये रात को सबको तंग करता है. तो उसको समझ आ गया? accuse का मतलब ये होता है. मैंने अब मैं इसको हिंदी में कैसे बताऊं? पीड़ित नहीं होता. पीड़ित नहीं. पीड़ित नहीं. अक्यूज की वो लगाना. आरोप लगा. आरोपी नहीं. आरोप लगाना. अक्यूज्ड आरोपी होता है. अक्यूज इज आरोप. इज इट क्लियर और नॉट? लेट्स मेक डैश अ quarrel एंड बी फ्रेंड्स अगेन. ये इसमें इसने बोला था मेक आउट. हाँ याद आ गया? चुम्मा चाटी नहीं करनी इधर. कहता लेट्स मेक आउट विद और कॉल. हाँ. व्हाट इज द आंसर? लेट्स मेक विद मी मेक अप. ये प्रोवर्ब होता है. इसमें ईडियम है. मेक अप का मतलब है कि पुरानी बातों को भूल जाओ. लेट्स मेक अप फॉर अ ओल्ड टाइम लॉस्ट टाइम. इज इट क्लियर और नॉट? ये भी गलत होएगा. ही हैज रिजाइंड हिमसेल्फ टू फेट. उसने सब चीज किस पे छोड़ दी है? किस्मत. मतलब? नेक्स्ट वन.
The ADM decided to resign when he was dashed for promotion to DN. Passed over. पासिंग आउट परेड होती है जैसे, पास्ट ऑफ, उसके छोड़ के चले गए आप, पास्ट ऑफ. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन. He persisted on saying so. A woman came in with a baby whom, ये गलत होएगा पक्का. who का मतलब क्या है? He, she said. She said just swallowed. Who she said this? What is the answer? Who she had said, had क्यों नहीं आना चाहिए? तो उसने पहले just swallowed. A woman came in who she said just swallowed a safety. उसने डॉक्टर को अभी बताया, she said just swallowed the safety. Next, cigarette smoking is injurious to health के लिए. You must remember the lesson. ये गलत होएगा. अब इसमें प्लीज मार्क करना. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. 50 है. You must remember the lesson. Word. How do I use word to word? अगर आप चीटिंग करते हो, उसने चीटिंग की, उसने वर्ड टू वर्ड कॉपी कर ली. इज इट क्लियर? कॉपी पेस्ट के लिए क्या हो जाएगा? वर्ड टू वर्ड. अगर हमने कोई चीज सीखनी है वर्ड बाय वर्ड, एक एक करके, वर्ड टू वर्ड क्या होता है? हम यूज करते हैं कॉपी पेस्ट के लिए. जैसे हमने बोला चीटिंग, उसने सारे आंसर्स वर्ड टू वर्ड वही लिखे थे जो बुक में दिए थे या किसी और की कॉपी में दिए थे. वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है? जवाब दे. मैंने ही गेव अ रिप्लाई वर्ड फॉर वर्ड. वर्ड फॉर वर्ड किस लिए हो जाएगा? जवाब. तो रिबाटल. वर्ड बाय वर्ड इज एक एक करके. आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी एक एक करके. वर्ड फॉर वर्ड क्या होता है? जवाब. वर्ड टू वर्ड क्या होता है? कॉपी पेस्ट. इज इट क्लियर? यू मस्ट रिमेंबर दिस लेसन वर्ड बाय वर्ड. पार्ट्स, जैसे बोलते हैं ना पार्ट बाय पार्ट, तो वैसे क्या हो जाएगा? वर्ड बाय वर्ड. रिमेम्बरिंग के लिए क्या आता है? वर्ड बाय वर्ड. कॉपी पेस्ट किया, वर्ड टू वर्ड.